जो जर्नी है टुवर्ड्स बीइंग फ्लिकर सिंह, इनके जो भाई साहब हैं आपने देखा होगा कि बचपन में इतना कुछ खास मोहब्बत था नहीं इनको हॉकी के प्रति, लेकिन ही डिडंट नो दैट वन डे ही इज गोइंग टू बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम. 2003 he got into the Indian hockey team. 2006 a bullet got into him. 2008 he got back to life. He fought with it. He said, I'm never going to give up. He made possible what is impossible. Arjuna Award winner, the man who has got into paralysis and come back to life and played for his country, Sandeep Singh. This story is about Networks production, produced by Sony Pictures Networks production, Chitrangada Singh and Deepak Singh, starring Taapsee Pannu, Angad Bedi, Diljit Dosanjh in and as Surma, written and directed by Shah. I'm good. Great. So before we check out the trailer, can we please ask you a little brief about the journey of Surma, about writing and directing Surma? It's just one word, it's a tough journey. Okay. And I hope it gets easy after this. Right. For all of you also. So we check out the trailer first and then we ask further questions to Shad Ali and the entire cast and crew. Thank you so much, sir. Can we please get the trailer of Surma on the screen, and can we get this down as well? Thank you. So can I please also call upon the writer and director of this film, Surma, Shad Ali. Can you please come on stage? Thank you. It is going to be a masterpiece. No fingers crossed, I know it. It's believable. It's just what you see on that trailer for about 2.5 minutes. Either way, I just want to ask you, Shad sir, कि मतलब फिल्मों के साथ काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस फिल्म को लेके why Surma? What inspired you? What was your experience like? Both the man, Sandeep, and the story, his story inspired all of us to make it. And it started with being embarrassed and ashamed that to not know this man's story before we got into it. And that's the reason we made the film then. And what was your experience like? Was it goosebumpy all day? Was it stressful? Was it traumatic? Was it? It was not traumatic. It was a very delightful experience and a very, very enriching experience to work with the people we worked with and the story that we were trying to tell. Right. After Shad Ali, can I please call upon the man in and as Surma, Diljit Dosanjh. Because he's so amazing and honest and beautiful. Diljit ji, कैसे जी? बढ़िया. सूरमा, ऐसा लगता ही नहीं कि आप और संदीप सिंह में कोई अंतर है. आप बिल्कुल ढल चुके हैं उस कैरेक्टर में. आपकी जर्नी के बारे में एज सूरमा, एज संदीप सिंह, आप थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो. हेलो गाइस, नमस्ते सबको. और सूरमा का ट्रेलर अभी आपने देखा. ये फिल्म जब पहले मुझे ऑफ़र हुई थी तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी कोई हॉकी, मैंने कोई भी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं कभी लाइफ में. लेकिन स्नेहा मैम और शाद सर, उन्होंने मुझे एग्री किया. और जब मैंने स्टोरी सुनी संदीपा जी की, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, वो हमारे साथ ही हैं. मैंने बहुत सुना है लिविंग लेजेंड के बारे में. एक्चुअली सूरमा, एक्चुअली संदीप जी सूरमा है. ऐसी सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो शायद ही कोई कम बैक कर पाएगा. तो मेरी लाइफ में मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जिसने ऐसा कम बैक किया. मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, आज संदीप जी खुद ही बोले. थैंक यू दिलजीत पाजी, शाद सर, एनपी सर, स्नेहा मैम, चित्रांगदा मैम, दीपक सिंह पाजी, एंटायर सोनी टीम, इंटायर प्रोडक्शन. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. शंकर, एहसान लोहिक टीम, म्यूज़िक, गुलजार साहब, बिकॉज मेरे को खुद पे बिलीव नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी स्टोरी बन पाएगी. आई नो मैंने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है. मेरे ब्रदर विक्रमजीत सिंह, उन्होंने बिगनिंग में मेरा बहुत साथ दिया. लाइक अ ब्लिंकर, एक घोड़े का होता है ना कि आँख के सामने लगा के रखना, एक ही रास्ता दिखाना, गोल, बस वही गोल है, उसी को अचीव करना है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरा स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ, दीपक पाजी और चित्रांगदा मैम,
कहते कि हम आपकी स्टोरी को बड़े स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो स्क्रीन आज आपके सामने दिख रही है। एक ही वर्ड था चित्रांगदा मैम का कि संदीप वेट करो, पूरी दुनिया को मैं ये कहानी दिखाऊंगी। उसके बाद स्नेहा मैम, एनपी सर, प्रांजल पाजी, इन लोगों ने कहा कि ये अब तुम्हारी कहानी नहीं, अब ये हमारी कहानी है, हम इसको पूरी दुनिया को दिखाएंगे, वेट करो। इंजन तैयार था, ट्रेन बिल्कुल रेडी थी, लेकिन विदाउट इंजन मतलब कहते हैं कि ट्रेन चलती नहीं है। शाद सर आए इंजन के रूप में। शाद सर ने आते ही कहा कि संदीप मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी रहा हूँ। तब तक मुझे शाद सर के बारे, बिकॉज मैं बॉलीवुड को मूवीज़ देखता हूँ, मुझे थोड़ा कम हिस्ट्री का पता है, लेकिन मूवीज़ देखता हूँ मैं। आई लव म्यूज़िक, आई लव मूवीज़। तो शाद सर कहते हैं कि हॉकी प्लेयर हूँ मैं, हॉकी की फीलिंग समझता हूँ, मेरे पे बिलीव रख, भरोसा रख। और आज आपके सामने है दिलजीत पाजी, तापसी मैम, अंगद पाजी, इससे अच्छी कास्टिंग नहीं हो सकती है। अब जो आपने कह दिया है संदीप सिंह के लिए सबसे पहले तालियां, that he is here, he is amongst us. And can I please call upon Taapsee Pannu and Angad Bedi on stage? मतलब what? क्या है, कहाँ है? नहीं है, कहीं ना कहीं है। Okay. Now Taapsee, a very very good afternoon. You've done all sorts of films, ठीक है? From Pink to Judwa to now to Surma. What was it like to play a hockey player? What was it about the training that you said no, मुझसे शायद ये थोड़ा टफ है, मैं कल आऊँगी? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था मैंने। कोच सर ऐसा तो नहीं बोला था मैं कल आऊँगी। एक्चुअली बहुत टाइम से ये था कि स्पोर्ट्स फिल्म करनी है। एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मैं एक्चुअली में एक रियल हीरो मानती हूँ। तो मेरे लिए एक तरह का वो था कि गोल पॉइंट कि मेरे को एक स्पोर्ट्स प्लेयर प्ले करना है। अब संदीप सिंह तो नहीं हो सकती मैं। So Not in this life because you're a woman. Not in this life. हाँ. But it was such an honor to be associated with this film, especially क्योंकि ये ट्रू स्टोरी थी और एक तरह का ना गिल्ट था कि स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ मैं, बहुत फॉलो करती हूँ हर तरह के स्पोर्ट्स, बट एक तरह का गिल्ट था कि ये स्टोरी क्यों नहीं पता थी मुझे। इनफैक्ट हमारे खुद की कंट्री की, हमारे एक्स कैप्टन की, माई फादर यूज्ड टू प्ले हॉकी एट नेशनल लेवल, बट नहीं पता थी मुझे ये स्टोरी। तो वो बहुत बहुत गंदा वाला गिल्ट था जो कि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट by in a way by doing this film and making sure that this story reaches like the entire world, not just India. So yeah, उसकी वजह से ये करना ही था। Good job. Good job. That is Taapsee Pannu, of course. Angad Bedi, first of all, congratulations on your shadi. Shukriya. Second of all, congratulations on being a part of this film and being a part of Sandeep Singh's, playing a part of his older brother. जो कि ज़्यादा, I think it's a little more tough, ना? जो मेन कैरेक्टर ना हो के मेन कैरेक्टर का मेन सपोर्ट सिस्टम है। सो कितना इमोशनल रहा ये, कितनी इमोशनल जर्नी थी आपके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ह्यूज ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज एज यू सीन इन द ट्रेलर द जर्नी ऑफ संदीप सिंह इज ब्यूटिफुल, इट्स इमोशनल, बहुत हाईज हैं, काफ़ी लोज हैं, दैट्स व्हाट मेक्स अ स्टोरी। एंड आई फील व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शाद भाई, ही सेड कि ये तुझे फिल्म करनी है। For me, I live for sport, and I feel that sports people हमारे देश के असली हीरोज हैं। इनकी लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता है। So when I heard the story, जो विक्रमजीत के sacrifices रहे हैं, वो sacrifices की वजह से संदीप बना है। So for me, I really enjoyed that graph. Firstly. Second is I've seen Sandeep Singh, मैं भी जब बहुत छोटा था तो ये नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में प्रैक्टिस कराते थे। How interesting is that? तो ये हॉकी खेलते थे और मैं क्रिकेट खेलता था। तो who knew that one day we'll be standing on this platform? I'll be doing a film which is based on his life. And also for me to work with my hero Diljit Dosanjh. He's like a brother to me, but I followed his graph, भले पंजाबी में हो, हिंदी में हो, उनका म्यूजिक मेरा इनसे बहुत खास लगाव है। और तापसी के साथ हमने एक फिल्म करी है पिंक, अब यहाँ पर हम वापस आए हैं। बॉटल की जगह हॉकी है। हाँ, बॉटल की जगह हॉकी है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ नहीं रही है, थैंक यू। पढ़ नहीं रही है। सो यस, फ्रॉम राजवीर एंड मीनल वी कम टू विक्रमजीत एंड प्रीत। सो बहुत ही अलग ग्राफ है, बहुत ही अलग जर्नी है, बट जस्ट टू बी हियर
to be part of this film, to be supported by Sneha ma'am. When my journey began in the film industry, she was very instrumental in getting me here. Because of her, I'm here, and I'm always going to be grateful for that. I'm just grateful for the fact that there's good cinema that is there in existence so that the audience is entertained and inspired at the same time. Now, जो लोग responsible होते हैं किसी भी film को actual में alive करने में ना, to actually put in the soul, can I please call upon the legend, and I'm not just frivolously using it, Gulzar Saab and Shankar Ehsaan Loy. Can you please join? Can we please sit down so that it's just, yeah, easy. If there are lesser seats, then... It feels surreal to be here. I'm sorry I'm having a fan moment, but I'll still continue with my job because it's my profession. Gulzar sir, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आपका जो एसोसिएशन रहा है शाद सर के साथ में काफ़ी इनक्रेडिबल रहा है. आप दोनों के एसोसिएशन की वजह से हमें ऐसी म्यूज़िक मिली है जो हम बारिशों में भी चलाते हैं, रोमांटिक मोमेंट्स के लिए भी चलाते हैं, इमोशनल होने के लिए भी चलाते हैं. सो ये जो एसोसिएशन है, थैंक्स टू दिस एसोसिएशन वी हैव इनक्रेडिबल म्यूज़िक. तो आप क्या कहना चाहेंगे सूरमा के म्यूज़िक के लिरिक्स के बारे में सर? जी, म्यूज़िक के बारे में तो बाद में बात करेंगे. पहले जिन लोगों ने ये मिरेकल किया है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको. और संदीप जी को, जिन्होंने ये ज़िंदगी का एक करिश्मा है, ज़िंदगी का एक मौजज़ा है, ज़िंदगी का एक मिरेकल है जो पैदा किया उन्होंने. कहानी तो उसके बाद बनी, पहले तो हकीकत थी. अब उसके बाद उसे ड्रामेटाइज करके जो शाद ने काम किया है, वो शाद पे जब शाद साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे लगा तो मैं कहा ये असल कहानी सुन के तो जी भर आया. तुम्हारी स्क्रिप्ट बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो असल कहानी सुनाई उन्होंने वही सुन के जी भर आया था. काम मुश्किल है, लेकिन तुम सारे ही मुश्किल काम करते आए हो और कर लोगे, ये भी कर लोगे. लेकिन पता नहीं पहुंची ज़रूर होगी. मैंने मुबारकबाद उस वक्त संदीप जी के लिए भेजी थी, वो वक्त था. और फिर कुछ नाम में तब्दीली हुई और फाइनली नाम सूरमा करार पाया. और आज यहाँ आके लगता है कि सूरमा एक नहीं, सूरमा बनाने वाले बहुत से सूरमा हैं जो इस सब में शामिल हैं. इन सब कई सूरमा हैं. उनमें मेरे एक करीबी सूरमा वो शंकर जी और ये त्रिमूर्ति है शंकर एहसान लॉय. ये खूबसूरत त्रिमूर्ति जिन्होंने इस तरह का म्यूज़िक दिया. और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ, एक तो खुशकिस्मती मेरी कि मैं शाद के साथ मुसलसल हर फिल्म में काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ. ये भी सीख रहा हूँ इस लिहाज से कि इस जनरेशन की ज़बान, जो सिनेमैटिक लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, वो कैसे तब्दील हो रही है और कैसे फ्रेश हो रही है, कैसे ताज़ा हो रही है. और उसकी स्पॉन्टेनिटी वो वाकई ज़िंदा रखती है. और उसमें ये त्रिमूर्ति वाले मिले हैं मुझे, जो हिलते हैं तो उसमें से मेलोडी पैदा हो जाती है. और इसके गाने जो लिखने का एक्सपीरियंस है, उसके ज़िम्मेवार दो लोग हैं. एक तो ये त्रिमूर्ति वाले हैं और दूसरे शाद साहब हैं, जो स्क्रिप्ट का सीन लेके, कैरेक्टर के डायलॉग लेकर और वो सारा का सारा मुझे सुना देते हैं. अब कहते हैं इसमें से गाना बनाओ. यानी पूरे सीन सुना के मुझे और पूरे वाक़यात बता के, ये नहीं बताते कि गाने में क्या कहना भाई. तो कहते नहीं ये पूरा है ना, बताया ना आपको, ये पूरा सीक्वेंस बताया, अब इस पे गाना बना दीजिए. मैं कहूँ नहीं कहिए ट्यून बनाए, तो फिर मैं इसमें लफ्ज़ भरता रहूँगा. और ये सही है
कि इंस्पिरेशन इन तमाम गानों में स्पोर्ट्स की थी। स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुबारकबाद आप सबको कि स्पोर्ट्स के हीरो जो हैं उनको नुमाया किया आपने, उनको चमक दी है, उनको सामने किया है। वो कोई किसी और बड़े मार्के से कम छोटे हीरो नहीं हैं जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो स्पोर्ट्स में कमाल कर रहे हैं। और मेरे लिए एक ही क्यू था इन गानों का कि हाँ, बात गोल करते हुए कहिए तो हम भी गोल करेंगे, तो ये करता रहा मैं। That's गुलजार साहब। जितने सारे शब्द निकल रहे हैं सर आपके मुंह से, ऐसा लगता है कि सबके सब जीवित हो रहे हैं, सबके सब मतलब बिल्कुल दे कमिंग अलाइव। शंकर एहसान लॉय, everything, it is incredible the kind of music you give all of us. चाहे वो किल दिल हो, झूम बराबर झूम हो, you know, I will say even if it's not a Shahid Ali film, भाग मिल्खा भाग for that matter, you know, it's very difficult for the audience to believe that there's एक म्यूजिक डायरेक्टर ट्रायो हैं जो ऐसा म्यूजिक भी बनाते हैं जहाँ पे आप डांस कर सकते हो, और ऐसा भी जहाँ पे आप इतने इंस्पायर हो सकते हैं in any situation of your life. How do you guys do it? I think it's just blessings because, you know, I mean, we've luckily three of us come from such diverse backgrounds that we can practically compose any kind of music, whether it be, you know, music for this kind of film, or you give us a Chinese film to do, we can do that, you know, and try and make it a hit. But the real experience about creating music for film is the team that we work with. In this case, Shahid Ali, who's just been so fabulous to work with from the first day that we worked together. A lot of culinary experiences happened during working with him. He knows where to order the right keema pav from, you know, and stuff like that. In all that, you know, we don't eat paan normally, but we only start eating paan when we work with him. And I think he does the same thing. And working with Gulzar Saab is enlightening. I mean, that's the least that I can say. You know, it's just a lovely experience. We've been lucky to work with him on one film after the other right now, and it's just, and that is what really does it. You know, each time that we work together, it's a different experience. We come with a clean slate, like, you know, like we said, people have no song banks. Hamari bank account puri khali hai. You know, we don't have any songs saved up, nothing. We just come up with ideas each time, and according to the script. And that's how it turns out so fresh each time, and we hope that that continues for at least a few more years. It definitely will. It definitely will, and it definitely should. Fingers crossed. Shankar sir, is it challenging for you to keep, you know, creating such phenomenal numbers? See, I think trying to do good work, any kind of film, it is challenging because I think detailing is what makes it challenging. And you know, this is the 22nd year of composing music in this industry. That deserves a huge round of applause. Thank you. And you know, when we look back, there are certain milestones that were there in our career. You know, there are important films that when we look back, we really feel proud of. And I'm sure that, you know, first of all, thank you, Sandeep ji, for allowing them to make a film on this, on your life, because it's so important. And the fact that all of us are associated with a film like this is going to be a milestone in our careers when we look back and proudly say that, yes, we were associated with Surma. So this is truly a blessing. And before I give the mic to Loy, all I can say is, with Sir around, you know, we just feel blessed. We just feel that we are so lucky, and we thank God that we are in the same period where we can even meet him, interact with him, and talk to him. So it's the biggest blessing. Thank you. That's Shankar sir. Loy sir, I have a quick question for you. Besides doing music, because you guys do it so amazingly well, do you play any sport at all? Are you interested in Strange. Well, I kind of watch from time to time. I used to play football when I was much younger. My brother-in-law played hockey for India. Strangely, I must ask him whether he knows him, but I will at some point. But I want to say this is that, you know, a great story must be told. And this is such a powerful, motivating story. When you look at the graph of what this gentleman has been through, amazing. I mean, it's really amazing. I can't believe I'm seeing you in person. You know, it's unbelievable. Because, I mean, I can't imagine what you've gone through to, you know, and you're here. And that can only be the blessing from the man above, the divine, of course.
to see you on that journey and put you on stage, you know, where you're absolutely normal. I mean, that's only the hand of the man on top. But having said that, yes, a great story, and we're fortunate to be part of telling that story in some way. So we're grateful for that. That's all. This is the art side of it. This is Shankar Ehsaan, Loy Gulzar Saab, there's Shad Ali, there's the cast, there's Sandeep Singh. Can we please call upon Mr. N.P. Singh, the MD and CEO of Sony Pictures Networks, and Ms. Neha Rajani, the head of Sony Pictures Networks production, along with producers Chitrangada Singh and Deepak Singh to come on stage, because if they are not there, we don't have the... Mr. N.P. Singh, Sony Pictures Networks is growing by the day. Growing by the day. Matlab 31 channels, and there's a film studio under your leadership. There's one OTT platform. How do you do it? What do you eat? How does it happen? Please answer these questions. And what exactly is the future, as far as you're concerned? Future, you can't predict future. I wish I could. But I'm sure it'll be as bright as the past and the present are. With you around, yeah, definitely. Definitely, yes. I've been part of this industry and part of the company that I work for and I love for the last 19 years, and it's been a fascinating journey. In the last few years, we've really grown from 11 channels to 31 today, and we are ready to launch our 32nd next month, which is Sony Marathi. It's our regional language channel, and I'm sure it'll be as successful as the other offerings that we've had. You haven't answered, what do you eat to become as amazing as you are? Samosa? Nice. No, samosa nahi. Who said samosa? No. It doesn't show on me, does it? No, it doesn't. That's why I was wondering, samosa khate to jate kahan hai? Mr. Singh, the next question to Sneha ma'am. I definitely have to ask you as a studio head, why Surma? I think it's been covered in the last 10-15 minutes, ample number of times. Shad has mentioned it. Diljit Paji has mentioned it. Taapsee has mentioned it. I think the overriding reason was guilt. Like Taapsee, I'm a sports fanatic when it comes to consuming it on TV and following it in the news. And when Chitrangada and Deepak Paji first came to us with this story, I'm not joking, the thought process in my head was, kitna jhoot bolte hain log. If this thing had happened, I would have known about it because I was so confident about my knowledge of sport. What then threw me off even further is that the story is only about 10, 12 years old. It's not like it was in the 40s and the 50s. That convinced me they're lying even further. But there they were, the two of them telling me the story, and I kept saying, can't be, can't be, can't be. Then I very slyly, whilst they were in front of me, Googled. And there is a one line, and it came up saying he was shot, and then he made a comeback. And I was just so distraught. And I remember I immediately went to NP, and I told the same thing to NP Singh, saying, sir, are you aware of Sandeep Singh? So he said, yes, I've met him once at some function. I said, are you aware that he was shot? So he said, Baskar, yaar, din mein bhi shuru ho gayi tu. So I said, I will not put you through the trauma I went through. Please Google it. And he did, and he said, I cannot believe this. I have met the man, and I had no clue. So to cut this very long story short, I think we immediately at that very, very moment said, we must make this film. Just to be a little fair to Sandeep, who I think we've been all very unfair with. So this is for you, Paji. Chitrangada ma'am, I have a question for you. Besides being the talented, fabulous actor, besides giving us the movies that you've given, this is your debut film as a producer. And how was it being producer to this incredible story everybody is, raving about? Because thank God we've got the story now.
You know, I think that's my reaction. Thank God I got to hear of this story. And my reaction was this, that, you know, I mean, in today's times, it's very difficult to come across a true, genuine comeback story. How many heroes have you really heard of? You know, which is not a product of media, which is not a product of all that exercise. I mean, this is a man we don't know of. He's in some corner fighting his battles, been left alone by everyone, and then he makes a comeback. We need to make heroes out of people like this. So really, I mean, honestly, that was it. And I said, you know, we've got to do something. We have to make this movie. And I have been around sports, you know, all my life. So I know कि कितना मुश्किल होता है एक स्पोर्ट्समैन को हर रोज उठकर अपने ऊपर बिलीव करना, you know, just every single day, the battle of that self-belief, and the fact that you're written off, कि आप यहाँ थे और अब आप यहाँ हैं, and then you're alone. So I just had this feeling that, you know, this story has to be told, and I can't thank Sneha, Pranjal, the whole creative team, NP sir here enough to have the faith and you know, the absolute need to tell the story. So I'm very, very happy that we made this. And agar kuch kahin humne kuch kisi bhi tarah se, like she said, if there can be any amount of fairness that we can bring to his life or to his story or what he's been through, I think this would do that job somewhere little bit. I hope so. Yeah. So thank God for the creative restlessness that producers go through, which is why we get films like these. Deepak Singh जी, आप तो संदीप जी को जानते हैं, you know, and आपने उन्हें इस पर्दे पे अभी देखा, मतलब of course दिलजीत दोसांझ is playing Sandeep's character. तो आपके लिए कितना inspirational रहा ये पूरा सफर? I was the first person who committed him that ये करेंगे, और उसके बाद फिर पूरा कारवां बनता चला गया, और अब it is, we all are सूरमास here. And this is, we have seen the trailer, picture अभी बाकी है. Picture 13 जुलाई को आ रही है, please mark your calendars. You have to absolutely watch this film. लेकिन I've spoken enough. They've said whatever they had to. But agar you've got any other question that you want to ask, Q&A for all the media personalities. Excuse me, can yes, I call please. Vikram Paji on the stage, please? Vikram, please. Sandeep Singh's older brother also joins us on the stage. So every media person out here, अपना नाम बताएं, कहाँ से आप हैं, and please ask the question. Feel free. Hello. Hi. Hello. दिलजीत जी, तापसी and अंगद, मेरा सवाल आप तीनों से है, आपके राइट में, लेफ्ट में. सवाल ये है कि अगर क्विकली डिस्क्राइब करें अपनी सूरमा की जर्नी को, तो आप तीनों कैसे कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सूरमा की जर्नी आपकी. क्विकली बोलूं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, शूटिंग, नाउ प्रमोशन, फिर रिलीज. दिलजीत पा. Sony Pictures, Sandeep Paji, Vikram Paji, and trailer. Angad bhai. Sandeep Singh, Diljit Dosanjh, Taapsee Pannu, Shad Ali, Bikram, the real Bikramjit Singh, and a small part of this beautiful canvas, Angad Bedi. संदीप साहब, आपसे एक सवाल है मेरा. इन दिनों काफ़ी हर तरफ हलचल है कि हरियाणा के खिलाड़ियों को 1/3 अपना देना पड़ेगा पैसा सरकार के लिए, और आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है इस पे? देखो पाजी, आई गेस यहाँ सूरमा की बात कर लें तो बेटर रहेगा. Sandeep ji. Hello, Chitrangada. Hello. Straight ahead here. Chitrangada. Yeah, straight. Chitrangada. Chitrangada. Sorry. DA, हाँ, बस इतना. I have a little speech impediment. No problem. Okay, so my question to you What's is... your name, darling? Where are you from? Russell De Thank Silva you. from Movie Fight. My question to you is, you will be acting this year in Sai Bibi or Gangster and Bazaar, and now you are making your debut as a producer. So which is the more challenging aspect of the profession, the producer or the actress? You know, मैं actually सोच रही थी आज सवेरे कि शायद सबको, तापसी, दिलजीत, सबको, I don't know, I think you've produced a film, right?
Okay, you are okay? No. आपने भी रिएक्शन देखा ना. I think सबको एक फिल्म ज़रूर एक प्रोजेक्ट एक प्रोड्यूस करना चाहिए टू रियलाइज कि जो अब हम वैनिटी से निकल के जो सेट पे जाके वापस वैनिटी में जाके गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, how easy and how simple that is. एक बारी वैनिटी के आने से पहले आओ and वहाँ वेट करो. I think that's when you realize just how much you need to believe in what you're doing, how much perseverance. मतलब I don't think मेरे लिए जितना भी मैंने थोड़ा काम किया है इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई सिनेमा में लर्निंग हुई है. And it's been an amazing journey. It's been a we all have been in it together, but you can't even come close to this. Production मतलब ही कुछ और ही है. And Angad, my next question is to you, straight ahead here. My next question is to you. You're also the son of a legendary cricketer, and since so many sports biopics are being made, have you ever discussed it with your dad about a biopic on his life, considering he was one of the trio of the greatest spin legends of India? That answer to your question, I think my father would be best if he's asked to answer that question. But if given an opportunity here, I think yes, he's definitely a very interesting personality. But considering now it's जो दौर चल रहा है वो biopics का ज़रूर है, but it also has to come together well. The story has to really appeal to not just you and me, but from an audience perspective as well. So I think it's too premature right now to talk about that. But right now, considering we're all part of this beautiful film, I think that through this film, if we can have an eye open to other avenues or other recognized sports people, it'll be good. शाद मेरा सवाल आपसे है, इसी से कनेक्टेड सवाल है कि जो बायोपिक का दौर है उस पर मिलन जी ने कहा था कि ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल खूबसूरत कहानियां नहीं थी. आप इससे कितना वो रखते हैं? ये ओरिजिनल खूबसूरत कहानी है. नहीं, लेकिन बायोपिक का दौर ही इसलिए आया क्योंकि हमारे पास अच्छी कहानियां नहीं थी, ये कहा था उन्होंने. उन्होंने उनसे डर्टी पिक्चर के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि ये दौर ही इसलिए आया क्योंकि अच्छी कहानियां नहीं थी बॉलीवुड के नहीं पास. मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ. ये उनका नज़रिया होगा, लेकिन अच्छी खूबसूरत कहानियां भी हैं, अच्छे बायोपिक्स भी हैं. और दूसरा सवाल ये कि आपने इसमें कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, खासतौर पे तापसी और दिलजीत की लव स्टोरी पर? वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद आप ये सवाल पूछेगा. संदीप जी ऑन योर लेफ्ट या संदीप जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड हम देख रहे हैं कि इन दिनों हमने ट्रेलर में भी देखा और हम रियल लाइफ में भी आपके जब आप इंजर्ड हुए थे तब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, और तब क्या आपने सोचा था कि आप उठेंगे और इस तरह से इंडिया को जीत दिलाएंगे? देखिए, फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता होता, बट बेसिकली मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलती थी कि ये व्हील चेयर और ये बेड मेरे लिए नहीं बना है. बिकॉज वो मोमेंट्स आई थिंक आपको ये मूवी देख के पता चलेंगे कि वो मोमेंट से आप फील कर सकेंगे मेरे अंदर क्या चलता था, क्योंकि वो वही समझ सकता है जो उस दौरान से उस टाइम से गुजरा हो. बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में आती थी, मेरे बड़े भाई साहब विक्रम पाजी एक ही बोलते थे मुझे कि तुझे खड़ा होना है, मैं खड़ा करके रहूँगा, सिर्फ मेरे पे बिलीव कर और अपने आप पे बिलीव कर. क्योंकि जब आप अपने आप पे बिलीव करोगे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो मैंने अपने आप पे बिलीव किया और लाइफ में एक ही चीज़ थी कि जो चीज़ मेरे पास हासिल नहीं है स्पोर्ट्स में, मुझे वो हासिल करनी है, अपने देश के लिए खेलना है. बहुत सी ऑड मोमेंट्स को मैंने क्रॉस किया, बहुत से हर्डल को क्रॉस किया, तो जाकर मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ. संदीप जी कंटिन्यू करना चाहूँगा आपसे. दूसरा सवाल ये कि पिछले कुछ एक सालों में ढेरों सारे स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर फिल्में आ रही हैं. आपने भी देखी होगी, हाल ही में हमने देखा MS धोनी के ऊपर आई थी, एंड अजहर के
जी के ऊपर आई थी एंड मिल्खा जी के ऊपर आई थी। आपने अगर देखी हो किसी की बायोपिक, किसी की फिल्म और आपको अच्छी लगी है, अगर आप हमें बता सके तो। देखिए, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, मुझे सारी बायोपिक्स अच्छी लगी हैं। हर डायरेक्टर ने अपने अपने एक लाइन पकड़कर, एक लहर पकड़कर बनाई है, तो मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छी है और ये बुरी है। हर किसी की लाइफ अलग होती है और उसको सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए। संदीप जी, फिल्म में एक सीन है जिसमें व्हीलचेयर, इधर आपके राइट साइड, जिसमें आप व्हीलचेयर पे दिखाया जा रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। तो एक खिलाड़ी के साथ इस तरीके का जब बर्ताव होता है, उसके बावजूद देश के लिए खेलने का जज्बा आप कैसे कायम रख पाते हैं? देखिए, जब आपको पता चले कि आप के पास कोई और चारा नहीं है, आपको खेल के ही प्रूव कर सकते हो। आप बोलोगे तो कोई सुनाई नहीं देगा। उस समय मीडिया नहीं इतनी स्ट्रांग होती थी कि अगर आप मीडिया को बोलो तो वो आपको सामने से प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए सामने दिखाएं कि ये खिलाड़ी है। और मैं उस लेवल का खिलाड़ी भी नहीं था, सचिन तेंदुलकर की तरह, मिल्खा सिंह की तरह। तो मेरे को एक लेवल अचीव करना था, तो वो एक ही रीज़न था कि मुझे खेलूंगा तभी पता चलेगा लोगों को। चित्रांगदा जी, ऑन योर लेफ्ट। चित्रांगदा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रोड्यूसर बन चुकी हैं आप। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जितने भी फीमेल एक्टर हैं, बहुत ही कम प्रोड्यूसर हैं। आफ्टर प्रियंका चोपड़ा एंड अनुष्का शर्मा के बाद अब आप, तो क्या फील करती हैं आप? आई थिंक बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी आकर कोई एक अच्छी कहानी कहे, किसी अच्छी कहानी को बैक करे, चाहे वो विमेन सेंट्रिक है नहीं है, अब हम स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, चाहे कितनी भी बायोपिक्स बनी हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सच्ची कहानी अगर सही तरह से कही जाए एंड उसका कहीं ना कहीं कोई एक अच्छा असर पड़े, ऑफ कोर्स एंटरटेन करे ऑडियंसेस को, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली मोर पावर टू वुमेन। आई हैव वन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी हियर जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ मेकिंग दिस फिल्म। सो यहाँ पर भी हम दो हैं, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेंड एंड वी शुड मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड कीप गोइंग। So that's it. दिलजीत, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी संदीप बनने के लिए? संदीप पाजी तो शायद कोई भी नहीं बन सकता हम में से, लेकिन फिल्म के लिए डेफिनेटली क्योंकि पूरी टीम को बिलीव था और शाद सर ने बहुत मेहनत की। खुद संदीप पाजी हर रोज़ सेट पे थे, विक्रम पाजी सेट पे थे, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल हुआ नहीं क्योंकि ये लोग खुद देख रहे थे, इन्होंने हॉकी खेली है, अगर कहीं भी कुछ गलत होता था तो सेट पे ही बता देते थे, कुछ ज़्यादा ऐसे मेहनत करनी नहीं पड़ी। Hi, at your center, Ankita from Republic. First of all, congratulations, amazing trailer and I got goosebumps, I must say. My question is to you, Diljit ji, center में। जी, कैसे हो तुसी? मैं ठीक है। जी। So my question. चलो कोई नहीं। Okay. सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि जैसे आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और आपने कितने उतार चढ़ाव हैं उनकी लाइफ में वो जाने, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट? द सेकंड क्वेश्चन इज कि कोई एक ऐसा टफ पार्ट जो आपको लगा हो, जो आपको करने में बहुत मुश्किल आई हो इस फिल्म के दौरान? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली जैसे शाद सर ने मुझे बताया था थोड़ा पहले, तो बिलीव नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार ये स्टोरी, पहले तो मैं स्नेहा मैम के पास गया, मैं कहा कोई भी फिल्म करा लो, फ्री में करा लो, हॉकी पे मत कराओ, बहुत मेहनत लगेगी और शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, कोई और रोमांटिक या कोई ऐसा कुछ फिल्म करा लो। तो ये लोग बहुत कन्विंस थे, तो मैंने फिर स्टोरी पढ़ी सुनी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत गलत डिसीज़न लेता अगर ये फिल्म मैं नहीं करता फिल्म अपने करियर में। सो दूसरा आपका सवाल था कि मुझे क्या मुश्किल, नहीं कुछ खास मुश्किल हुआ नहीं क्योंकि शाद सर थे और बहुत ही प्यार से सारी टीम सोनी की बहुत प्यार से सब ने शूट किया, तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल तो कुछ नहीं लगा और मैं एंजॉय करता हूँ जब भी काम पे होता हूँ। संदीप जी, आपसे भी एक क्वेश्चन है। जैसा इन्होंने बताया, यू वर देयर ड्यूरिंग द शूट्स एंड ऑल, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा हो जिसमें आप इमोशनल हो गए हो किसी और को अपनी लाइफ की जर्नी दिखाते हुए, ऐसा कोई सीन हुआ? देखिए, जब भी मूवी शूट हो रही थी, ऑल द टाइम हम सेट पे रहते थे, विक्रम पाजी और मैं, तो हमें एक ही चीज़ आता था कि ये चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन कर दिलजीत पाजी रहे हैं, लेकिन वो सेम डिट्टो कॉपी दोबारा दोहरा रही है मेरी लाइफ में। तो वो मोमेंट्स मेरे जो आज से 10 साल पहले 2006 2004 की जो जर्नी है, वो जो एक हार्ड टाइम था, वो दोबारा सामने से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता था। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, मोर पावर टू यू।
तापसी जी ऑन योर लेफ्ट, हाय। सुंदर बुला सकते हैं हम आपको? क्या बुला सकते हैं? सुंदर। हाँ बुलाओ ना प्लीज। ओके ओके, सुंदर जी, क्योंकि हम आपकी सुंदर फिल्मों में जी। हाँ, क्योंकि हम आपकी फिल्मों में देखते हैं आप ऐसे फाइट करती हैं और अपने अंदाज से लोगों को मार के गिरा देती हैं, तो इस फिल्म में भी आप ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा या कुछ डिफरेंट होगा? एक बारी मुझे हीरोइन बनने दो ना। मैं हीरोइन मेरे को फॉर अ चेंज इस पिक्चर के अंदर मैं बहुत ही हाँ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो जब ऑन फील्ड होंगी तो उस टाइम आप काफ़ी एग्रेशन देखेंगे, बट इन लाइक ऑफ फील्ड लाइफ जो होगी वो हरप्रीत की बहुत एक कॉय शाय बहुत प्यारी सी हीरोइन जैसी लड़की होगी। प्लीज तो कुछ थोड़ा सुंदर सुंदर हीरोइन जैसी लड़की होगी। बहुत सुंदर। और थैंक यू चित्रांगदा। तो तापसी जी सुंदर जी थोड़ा सा और आप अगर बता सके अपने किरदार के बारे में। दिलजीत यहाँ आपके सेंटर स्ट्रेट एड दिलजीत यहाँ पे यस दिलजीत आपका बॉलीवुड का सफ़र उड़ता पंजाब से शुरू हुआ था और या सेंटर स्ट्रेट एड। हाँ जी जी, तो आपका बॉलीवुड का सफ़र उड़ता पंजाब से शुरू हुआ था और बहुत उम्दा काम किया था आपने उसमें, लेकिन क्या आप कहेंगे कि सूरमा का जो सब्जेक्ट है और इसका जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये वो फिल्म है जिससे आपको एक पैन इंडिया ऑडियंस मिल सके, क्योंकि ये एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली और इंस्पायरिंग फिल्म भी लग रही है, तो क्या ये एक पैन इंडिया ऑडियंस वाली फिल्म होगी जिसमें आपको एक प्रॉपर वाइड स्प्रेड बॉलीवुड हीरो के रूप में देख सकेंगे हम लोग? पाजी मैं जब काम करता हूँ सेट पे तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि ये पंजाबी फिल्म है या बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म है, तो मैं अपना सिर्फ काम करता हूँ। अब ये कितने थिएटर्स में लगेगी, कहाँ कहाँ पहुँचेगी और कितने कितने लोग इसको देख पाएंगे वो पता नहीं। मैं तो खुश हो जाता हूँ जब सोशल मीडिया पे या कोई मुझे मैसेज करता है कि हमने आपकी फ़िल्म देखी है, कभी कोई मिलता है। अभी इस फिल्म की जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको ये फिल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए संदीप पाजी के लिए। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पोर्ट्समैन हैं तभी ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे। मुझे लगता है लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम डाउन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा काम, तो वो एक बहुत अच्छी और तगड़ी इंस्पिरेशन इस फिल्म से मिलने वाली है। सो आई होप सबको अच्छी लगेगी। दिलजीत जी, एक और क्वेश्चन था आपसे। आप अक्सर अपनी फिल्मों में गाने गुनगुनाते हैं, क्या आपने इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है? थैंक गॉड, शाद सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने एक शो किया था राइजिंग स्टार शंकर जी के साथ, और मैं जब भी साइड में बैठ के सुनता था गाने शंकर जी के, इतने कमाल के और इतने सुपर हिट गाने इन्होंने अपनी लाइफ में बनाए हैं, मैं कभी इमेजिन भी नहीं करता था कि मैं इनके म्यूज़िक में कभी गा पाऊँगा। इस फिल्म के ज़रिए गुलजार साहब से मिलना बहुत बड़ी बात थी लाइफ में। शायद मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं उनको कभी मिल पाऊँ लाइफ में, ना ही मेरा कोई इतना कनेक्शन है, तो उनकी रचना, लिखी हुई रचना को गाना और शंकर सर के म्यूज़िक, शंकर ईशान लॉय के म्यूज़िक में गाना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये इक्वल ऐसे बात है जैसे मैंने फिल्म की और वो गाना, मैंने एक गाना गाया इस फिल्म में, वो आप लोग जल्दी सुनेंगे। हाँ पूछिए। मेरे जहन में जिस दिन ये कहानी आई, जिस दिन मैंने कहानी सुनी, उस दिन से सिर्फ दिलजीत ही था और कोई दूसरा नहीं था, और मैंने मना करने दिया नहीं उनको इसलिए हम बैठे हैं यहाँ। हेलो, स्क्रीन पे जब अपने आप को आपने देखा, अंगद जी को देखा आपका किरदार करते हुए, तो आपको कैसा लगा? क्या लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है, कैसे कर रहे हैं? बाइसेप कम है अंगद का। चालू थोड़ा पास। हेलो, पाजी कह रहे हैं कि बाइसेप कम है थोड़ा अंगद का नहीं, मी एज ए बड़ा भाई, संदीप ने हमेशा बोला है कि मुझे इतना बड़ा मान दिया कि मेरे बड़े भाई ने सब कुछ किया है, पर किया इसने है, पर इसकी जो विल पावर है, मुझे नहीं लगता किसी में इतनी विल पावर हो कि जिस स्टेज पे मैंने उठाया इसको, और जहाँ पे अब मैं आप स्टोरी देखोगे आपको पता लग जाएगा कि इंसिडेंट जो हुआ है कि जिस दिन इसको डॉक्टर बोला था कि तू पैरालाइज हो जाएगा और ये रोया है और जो कुछ हुआ इसके साथ,
उसके बाद मैंने कहा तेरे साथ मैं हूँ, और फादर थे, बोले हम दोनों हैं, तुझे खड़ा करेंगे जो मर्जी हो जाए, और आज खड़ा किया है। और बस संदीप जी, Sandeep, this side. There's a scene where there's a line goes, abundant love. So have you experienced that? Or it is, has Shad taken cinematic liberty? देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं, जहाँ तक आपका जो इंग्लिश वर्ड था मुझे समझ आया, वो मैं इंग्लिश वैसे इतनी पढ़ता नहीं हूँ अगर हिंदी में बता देंगे तो और अच्छा आसान आंसर दे सकते हैं। प्यार ने आपको छोड़ दिया। वो कुछ रीज़न थे, अगर वो नहीं छोड़ते तो शायद संदीप सिंह दोबारा कमबैक नहीं कर पाता। और कुछ रीज़न थे, वो आपको मूवी देखकर पता चल जाएंगे, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि गोल मुझे दिखने लग गया था कि मेरा रास्ता ही एक है, बाकी सब दिखावा है लाइफ में। अगर आप कुछ अचीव करोगे तो बाकी चीज़ें कहते हैं ना झक मार के मिलेंगी, तो अगर आप अचीव करोगे तो ये दोबारा आ सकती है, लेकिन अगर आप अचीव नहीं करोगे तो ये भी भाग जाएगी। हेलो दिलजीत जी। हाय हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टिंग में तो आप अपने जलवे दिखा ही चुके हैं, बट आपके म्यूजिक में भी काफ़ी लोग आपके फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं। रिसेंटली आपका एक शो था बर्मिंघम में जो हाउसफुल हुआ, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? जी हाँ, जब भी बाहर शोज़ होते हैं तो सब सपोर्ट करते हैं म्यूज़िक को। वो म्यूज़िक की वजह से ही बर्मिंघम में मेरा लास्ट शो था और वो सेल आउट हुआ अरीना, बहुत अच्छा लगा मुझे। संदीप कहीं Sorry, before we ask another question, कोई ma'am, सीन एक में second. दिखेंगे कैमियो रोल Ma'am, में संदीप? मैम एक सेकंड, In the दो फाइनल सवाल, लास्ट 2 questions and photo ops. Thank So you. will संदीप भी आप दिखेंगे संदीप जी इसमें फिल्म में बीच में एज कैमियो या कुछ? देखिए starting में? दिलजीत पाजी संदीप सिंह का किरदार किया है और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई कर सकता है। एक आध ਤੁਹਾਡੀ झलक तो होनी चाहिए ना। विक्रम पाजी का कैमियो है फिल्म में। विक्रम पाजी कर रहे हैं, लेकिन दिलजीत पाजी, मैं कहूँगा कि दिलजीत पाजी से बढ़कर कोई और इस कैरेक्टर को नहीं कर सकता था। और इससे बड़ा मैं कहूँगा कि इससे ऊपर, कहते हैं ना, इससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं है जो इस कैरेक्टर पाजी ने किया। और इनको इनकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पाजी का, कि इनको एक बार समझाना पड़ता है, दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ती है और उसको वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। संदीप जी, हेलो। चित्रांगदा, संदीप जी, चित्रांगदा, I have a question for you, चित्रांगदा। संदीप जी, स्ट्रेट एड। Hi. संदीप जी यहाँ पे, तो मेरा सवाल आपसे ये है संदीप जी कि अभी आपके लाइफ के ऊपर ये फिल्म बनी है और काफ़ी इंस्पायरिंग लग रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपके सीनियर्स और आपके कलीग्स में से आप कौन से दूसरे हॉकी प्लेयर्स के ऊपर भी फिल्म या बायोपिक देखना चाहेंगे? देखिए, मैं दो स्पोर्ट्स पर्सन का नाम ले सकता हूँ हॉकी में। सबसे पहले दादा ध्यानचंद जी, हम सब स्पोर्ट्स डे मनाते हैं उनके नाम पर। और दूसरा मैं कहूँगा कि धनराज पिल्ले, बिकॉज धनराज पिल्ले ने जो किया है हॉकी में अभी तक किसी ने वो नहीं किया है, और वो पूना से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है जब मैं यंग था। तो दोनों को मैं कहूँगा, दादा ध्यानचंद और धनराज पिल्ले। ओके, मेरा सवाल लास्ट क्वेश्चन है तो मैं ही पूछूंगा। तापसी, मेरा सवाल आपसे है। कौन सी जबरदस्ती भाई, एक सेकंड, ये जबरदस्ती है मैडम, बहुत देर से माइक ढूंढ रहा था, अभी आके हाथ लगाए मेरे। मेहरबानी करें मुझे पूछने दें। अच्छा, आप मुझे पूछने नहीं देंगे, मैं फिर भी पूछूंगा। पूछिए। तापसी, मेरा सवाल आपसे है, इतना लार्जर देन लाइफ किरदार है संदीप जी का और दिलजीत उसको निभा रहे हैं। ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने पे क्या आपको लगता है, क्योंकि किरदार इतना बड़ा है, शख्सियत इतनी बड़ी है, उसका स्ट्रगल इतना बड़ा है, आपको क्या ये कभी महसूस हुआ कि उस किरदार से, उस शख्सियत से आप जो निभा रहे हैं वो ओवरशैडो हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा, शाद क्या जरूरत थी लव इंटरेस्ट दिखाने की, और क्या जरूरत वाकई में थी कि ये एक पहलू था संदीप की जिंदगी का जहां उन्हें किसी से मोहब्बत हुई, किसी से वो प्यार करते थे, या कमर्शियल एस्पेक्ट से कि जरूरी है कि एक हीरो है तो उसकी एक हीरोइन होना चाहिए, लव इंटरेस्ट होना चाहिए? प्लीज आंसर दिस। अच्छा, तो पहले तो मैं आंसर कर दूं। आप ये सवाल उस लड़की से पूछ रहे हैं जिसको सिर्फ 10 मिनट का स्क्रीन स्पेस मिला था बेबी में।
I love the way you work. I respect. So I guess you know what happened after that. So I don't think time span matter करता है. मैं इन सबके साथ मजाक करती हूँ. मेरे 5 सीन भी होंगे ना पिक्चर में, मुझे पता है थिएटर से बाहर निकल के ऑडियंस मुझे याद रखेगी. That much confidence I need to have on myself as an actor. We agree. जब आप 2 मिनट के लिए भी हो अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, इसलिए तो मैंने पूछा. तो आपने क्या ये मेरे से पंच लाइन सुनने के लिए पूछा? यकीनन पंच लाइन ही तो मिल गई, नेक्स्ट स्टोरी मिल गई. देखा, आपने कहा कि best पिंक हो में यार, 10 मिनट मैंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और यहाँ पे भी. पिंक में नहीं 10 मिनट थे यार, बेबी में 10 मिनट थे यार. बेबी का आपने जिक्र किया. हाँ तो बस इसलिए तो मेरे को हर बारी हीरो होना जरूरी नहीं है यार. बाकी आगे और पिक्चरें आ रही है मेरी इस साल, वो देख लेना. बच्चन साहब के साथ. उसमें बच्चन साहब के साथ जो वो तो अगले साल आएगी. बाकी जो इस साल वो पूरी मैं पिक्चर में दिखूंगी. अभी इसके अंदर मुझे तो हीरोइन बनना दो ना यार प्लीज. सुंदर. सुंदर. शाद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी है, तो इसमें कोई कमर्शियल रीजन की वजह से ये किरदार नहीं डाला गया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी फिल्म में. और बाकी आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आप कोई भी पूछ लो. Yes, please. One last question. Yes. Chitrangada, the question that I have for you is that when you decided to back this film as a producer, I'm sure the journey wasn't easy, particularly because most people did not know what Sandeep Singh had been through, and probably a lot of people wouldn't even know if there was a player like that. I want to know from you how much of a struggle it was for you, A, to first find a studio that could partner with you, and then to zero in on an actor who could convincingly play the man sitting on your side. You know, I'm glad that you came to this. I just want to say that yes, the journey would have been far more difficult if we didn't have Sony backing this project and having this much of faith. So like Sneha said, that she actually felt the guilt कि हमने अभी हमें पता क्यों नहीं है ऐसे किसी के बारे में. And I think Mr. N.P. Singh had the same reaction. And I think somewhere everybody felt कि ये कहीं ना कहीं हमारी एक duty बनती है to do justice to this man who has stood alone all this while, you know. So I think just to have that kind of backing, to have that kind of support, and then when Shad came on board and he took over the whole project, the journey has only become easier and easier and easier, and with Diljit and Taapsee on board, and I could not have possibly asked for better people. I'm so thankful that we have you, Diljit and Taapsee. Thank you so much for being on this film. And बाकी सब अब आप लोगों के ऊपर है. But this is what we have, a product of love and faith, and this is what it is. Thank you so much. Before you guys come up for a photo op, I just have to thank everybody for your patience and tolerance, and the entire cast and crew for giving us this film.